we are well in time and we shouldn't waste anybody's time anymore. Perfect. Perfect. Okay. Hello, everybody. Good evening. I am Shivi Bhatt, your speaker for today. I partner with MindWit app, and together we are going to talk about emotional intelligence in professional setting today. So I hope you guys are ready, and I hope you guys are ready with a pen and a pencil or a page and a pencil. If not, I'll give you 30 seconds to grab it for yourself so that you can always note down things that you might like and note down your observations that you might ask later in in the group or personally contacting us, or if we have the time we can you can also ask those questions, those queries or doubts in the meeting today. Perfect. Let's begin. Um, Before we begin, I would like to first introduce slightly the concept of emotional intelligence to you all so that there's a better understanding of what the concept overall means. Emotional intelligence, again, as Indians, our only concept of intelligence sometimes limits itself to how well we perform academically. So if you're intelligent, that means you're performing well academically, you were a very bright student in school, and आपके marks बहुत अच्छे आते थे. That is what we feel, we think intelligence is, but intelligence is more than that, and it has a lot of aspects. Like there is common intelligence, there is academic intelligence, there is emotional intelligence, there is social intelligence, there is relationship intelligence. So there are a lot of different and equally important aspects of intelligence. Today we are going to talk about emotional intelligence, which means how well do you know yourself, how well are you able to identify your emotions, how well are you not only able to identify your emotions but are also able to manage them. And it does not limit to only this self, only till this extent. You are not only supposed to identify your emotions and manage them, but how well can you identify or relate with someone else's emotions? How well are you able to help them manage their emotions or understand what they must be feeling without them telling us? This, when spoken like this seems like अरे ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, या फिर ये तो बहुत ही लेंदी कॉन्सेप्ट है, अरे इमोशनल इंटेलिजेंस तो यार बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. But it is not. We practice emotional intelligence in our daily lives. For example, when a friend comes to us and says, आज तुम believe नहीं करोगी क्या हुआ, या तुम आप बताओगे ना मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, या वो, or sometimes when your friend is bitching about say their boss, our first instinct is कि this बंदा is ये तो बहुत ही गुस्से में है, या ये बहुत ही frustrated है and I need to calm her down, अरे रहने दो यार पागल है वो, ऐसे बोलते हैं हम. दिस इज ऑल्सो इमोशनल इंटेलिजेंस. दिस मीन्स कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हमारी फ्रेंड भले ही इन क्लियर वर्ड्स नहीं बोल रही है कि मैं एंग्री हूं या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, लेकिन हम समझ ले रहे हैं कि वो अगर अपने बॉस की बात कर रही है, या वो इस पर्टिकुलर टोन या फ्लैट टोन या फिर वैसी पर्टिकुलर इमोशन से बात कर रही है, या उस तरीके से उसकी वॉइस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसी है, तो हमें समझ में आ रहा है कि एंगर या फ्रस्ट्रेशन ही है. और फिर हम करते क्या है, हम उसको हेल्प करते हैं उसके इमोशन मैनेज करने में. तो हम उसकी हेल्प करते हैं कि अरे यार उस आदमी की बात दिमाग से मत लगाया करो, वो तो ऐसे ही बोल देता है, उसको तो चाहिए, उसका नेचर ही ऐसा है. So now we are also helping them manage their emotion. We are helping them, calm themselves down. So this is a portray of emotional intelligence. So ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑलरेडी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, हम हैं, बट हम अलग अलग लेवल्स पे हैं. और कभी कभी अगर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी बिल्ड नहीं हुई है कि हम अपने इमोशंस कैसे मैनेज करें अच्छे से, या हम दूसरों के इमोशंस को कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, अगर ये कैपेबिलिटी थोड़ी सी भी कम डेवलप्ड है, कम बिल्ड है, कम इंस्टिल्ड है हमारे अंदर, तो हमें प्रॉब्लम आती हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में भी. कई प्रॉब्लम्स आपने ऐसे सुना होगा कि तुमको तो कभी, तुम मेरे को समझ ही नहीं पाओगे, तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, या तुम तो कभी समझ ही नहीं पाते हो कि मैं क्या फील करती हूँ. यू हैव नो आइडिया व्हाट आई फील, you don't understand what I am going through. If sometimes we hear these words or we say these words to our loved ones or to our friends or our family, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम रिलेशनशिप में इमोशनली इंटेलिजेंट कम हो रहे हैं.
आज के हमारे सेमिनार में, हमारे वेबिनार में हम पर्टिकुलरली कैसे प्रोफेशनल सेटिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करें और पोर्ट्रे करें, हम इस पे फोकस करेंगे। क्योंकि पर्सनल लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है, बट जैसे कि इंडिया एज अ वर्किंग सोसाइटी, एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, हम जितना एज एन इंडस्ट्री जितना रेवोल्यूशनलाइज हो रहे हैं, हमारा वर्किंग कल्चर चेंज हो रहा है आज के करंट सिचुएशन में। आज कम से कम हर फैमिली में 2 वर्किंग लोग हैं। तो जहाँ पे ये ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ ये हमारी न्यू रियलिटी हो रही कि हम सब कोई ना कोई किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रोफेशनल सेटिंग में, वो हमें समझना और जानना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि आप घर में जैसे बिहेव करते हैं या आप अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे बिहेव करते हैं, जरूरी नहीं कि आपके ऑफिस में भी, आपके वर्क प्लेस में भी, आपके प्रोफेशन में भी वो टॉलरेट किया जाए या वो बेस्ट बिहेवियर कहा जाए। इसलिए आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस पे फोकस करेंगे, बात करेंगे। अगर इस पर्टिकुलर स्लाइड से आप कुछ टेक अवे ले सकते हैं, तो जो मेरे 4 वर्ब्स हैं, मैंने जो इनको हाईलाइट किया है, ये अगर आप समझें कि आप अपना और दूसरों का इमोशन रिकॉग्नाइज कर सकें कि क्या ये गुस्से में है, क्या ये थकी हुई है, क्या मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ क्या, या मैं हर्ट फील कर रहा हूँ क्या। रिकॉग्नाइज योर इमोशन, then use this information. Acha, I am feeling guilty, then why am I feeling guilty? Ask yourself. Or if I'm feeling guilty, what can I do to not feel guilty? Maybe I can apologize, yeah, maybe I can correct what I did wrong, maybe I can correct my mistake, maybe I can give myself a second chance, or maybe I can ask for a second chance. जो भी है, सिर्फ इमोशन रिकॉग्नाइज मत करिए, बल्कि क्या हम अब इस इमोशन के साथ डील कैसे करें वो भी समझिए। हाउ कैन आई यूज दिस इंफॉर्मेशन, हाउ कैन आई डील विद दिस सिचुएशन। तीसरा है लेबल करिए दूसरों की फीलिंग भी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक सोशल सेटिंग में हो, स्पेशली जब हम प्रोफेशनली सोशल सेटिंग में हो, जहां हम सबके काम इंटर रिलेटेड होते हैं, चाहे हम कोई टीचर हो, चाहे हम एक स्टूडेंट हो, चाहे हम एक एम्प्लॉय हो, चाहे हम एक बॉस हो, चाहे हम एक पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, कोई ऐसा आज के जमाने में एक पर्टिकुलर प्रोफेशन नहीं है जिसमें हम अकेले काम कर सकते हैं। हम ऑलरेडी लोगों के साथ उनकी हेल्प लेके, उनका कंट्रीब्यूशन लेके हम काम कर रहे हैं। एंड देन बिकॉज हमारा वर्क इंटर रिलेटेड है, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि ना सिर्फ हम अपने इमोशन पे ध्यान दें, बल्कि हम दूसरों के इमोशन भी समझें, दूसरों के इमोशन को भी लेबल करें, दूसरों को हेल्प करें, दूसरों के उनके इमोशंस मैनेज करने में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्वायरमेंट के हिसाब से हमें एडजस्ट करने आना चाहिए। जैसे बॉस को अगर गुस्सा आई हुई है, तो बॉस को भी ऑल्सो वर्क्स हैज टू वर्क ऑन देयर एंगर, बट हम भी समझ लें कि व्हाट, ही इज एंग्री अ लिटिल, सो मे बी आई शुड काम डाउन, या मैं काम अच्छे से कर करके बाद में उनको प्रेजेंट करता हूँ गुड वर्क, ताकि उनकी गुस्सा मुझ पे नहीं निकले। सो व्हाट इज दिस, यू आर यूजिंग योर इमोशनल इंटेलिजेंस टू अडेप्ट टू योर इन्वायरमेंट। ये एक मैंने फन गेम सोचा था हमारे ऑडियंस के लिए। आई आई यू कैन टेक 30-40 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम, एंड आई एम श्योर आप लोग में से कम हमारी आज की 50 या 60% ऑफ जो पार्टिसिपेंट पॉपुलेशन है, दे आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग पीएचडी स्कॉलर्स हैं तो ऑफ कोर्स आप लोग अपने गाइड्स के अंडर हैं। अगर आप लोग किसी छोटी या बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप एक 5 पर्सनल वाले ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपके लिए आपका ऑफिस है, आपके लिए आपकी कंपनी है। तो अगर आप कहीं से भी वर्क कर रहे हैं, तो टेक 30-40 सेकेंड्स ऑफ योर टाइम एंड फाइंड आउट योर इमोशनल बिंगो। आपको क्या क्या अपने वर्क टाइम में, या आप अपनी वर्क लाइफ से, अपने प्रोफेशनल सेटिंग में आप क्या क्या फील कर रहे हैं इन सारे 4x4 16 इमोशंस में से। सो यू कैन अगेन, आप बाद में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, इफ यू वांट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू इट। बट दिस इज अ नाइस वे ऑफ बिल्डिंग सेल्फ अवेयरनेस। सो आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, आप खुद एक बार ढूंढिए कि कौन कौन से वो वर्ड्स हैं जो मैं, you can take a picture of it and you can circle it later, but just try to bring that into your self awareness ki what are the verbs, what are these feelings, that what are these emotions that I go through.
Perfect. Should we move ahead, or no, would somebody like to share how they are feeling? This is a safe space, a non-judgmental space, of course. अगर आप लोगों को लग रहा है कि like you only feel good emotions in your company, or you feel like sometimes I feel like I am overwhelmed or overworked, yeah, I feel like I'm very, I have self doubts. These are, you can share with us. And most importantly, if you bring that into your own awareness, that is step one. एक बार जब हमें पता चल जाता है हम फील कैसा कर रहे हैं, या हमारी प्रॉब्लम क्या है, या हमारे इश्यूज या कंसर्न्स क्या है, इट बिकम्स ईजियर. दैट इज स्टेप वन ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम. आप एक मेडिकल डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो पहले वो यही बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है. एक बार वो पता चल गया तब फिर हम आगे काम कर सकते हैं. Yes. Now this. Yes, thank you, Marutro. Sometimes good and sometimes bad, and this is a very natural, response, and this is a very, I would say, this is a very good response. हमेशा, लाइफ इज नॉट अ पिक्चर कि हम साथ साथ हैं ही है हर टाइम. एंड हमेशा ओनली एक्सपेक्टिंग कि आई वांट टू बी हैप्पी ऑल द टाइम इज अनरियलिस्टिक. यू आर गोइंग टू फील ऑल द इमोशंस. जितने भी वेदर्स हैं, जितने भी सीजन्स हैं इस लाइफ में, हम सब वो फील करेंगे. तो समटाइम्स गुड व्हेन लाइफ इज गुड, एंड ऑफ कोर्स लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है इफ वी आर ओनली गोइंग थ्रू हैप्पी थिंग्स. तो अगर कभी कभी लाइफ में थोड़े चैलेंजेस आते हैं, समटाइम्स यू आर अपसेट, इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी कि व्हाई एम आई सैड. इट इज, दीज आर अपॉर्चुनिटीज टू रिफ्लेक्ट कि व्हाट डू आई नीड टू चेंज इन माय लाइफ. मैं नया क्या करूं अपनी लाइफ कि मैं इतना सैड ना फील करूं. तो ऑलवेज यूज योर बैड टाइम्स एज इंस्पिरेशन कि मुझे अपनी लाइफ से क्या हटाना बढ़ाना है, so that I don't feel this way again. These are all good reminders, and we should experience them. I think this is a very important discussion for today's webinar, where we talk about how emotional intelligence should work in a professional setting. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एज एन इंडियन सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी से आए हुए हैं, हम बहुत ज्यादा कभी हमें लगता है कि हम जैसे हैं, हमें थोड़ी सी पॉजिटिव सेल्फ लव थोड़ा ज्यादा है, इन द सेंस कि भाई मैं ऐसे ही हूँ. अगर आप पुरानी जनरेशन की बात करें, कभी पुरानी जनरेशन अपने फादर या ग्रैंडफादर्स के साथ बैठेंगे और उनसे उनके कंपनी के बारे में पूछेंगे कि उनका बॉस कैसा था, या उनके टीचर कैसे थे, या उनके साथ काम करने वाले लोग कैसे थे, वो अक्सर ऐसे बोलेंगे, अरे वो तो बहुत गुस्सैल थे, उनसे तो सब डरते थे. टीचर्स की बात हो गई, या फिर अरे वो बॉस जो, उसका तुरंत काम नहीं किया तो सबको टाइम कराते थे. मतलब जो बी जनरेशन है हमारी, इनमें एक particular show of hands work. Am I audible now, or is it still buffering? So, like I could bring a change in network or something. Still buffering? Okay, okay. Give 1 minute. Give me 1 minute. Fully. सेल आदमी थे वो, और उनसे तो कोई बात करने में सब लोग, उन्होंने एक बार बोल दिया वो मिलता था. एंड यूज्ड टू, इंसान जमाने के, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, और लोग होते थे जो मैं उनका Is it buffering again? Oh, good God. माना जा रहा है. आजकल वो जोक्स पुराने हो गए हैं. लगता है आज बॉस लड़के आया है, या लगता है आज मैम लड़के आई है घर से. ये जोक्स पुराने हैं, एंड दीज बिहेवियर आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल. तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम हमारे इमोशंस रेगुलेट करें जब हम किसी से भी बात कर रहे हैं. चाहे वो हमारा जूनियर हो, चाहे वो हमारा सीनियर हो, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो, हमारे एम्प्लॉयज हो, हमारे सबऑर्डिनेट्स हो, हमारा इंटर्न हो, चाहे वो हमारे बॉस हो, हमारे मैनेजरियल लेवल पे हो, या ऑफिस क्लर्क हो, ऑफिस स्टाफ हो. हाउ यू रेगुलेट योर इमोशंस, और आपकी जो प्रोफेशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप उनको कैसे
फुलफिल करते हैं, वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान का इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक माना गया है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आजकल इंटरव्यूज में भी पूछते हैं कि अगर आपके पास ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गई तो आप कैसे बिहेव करेंगे। वो ये जानने के लिए कि अब हमें हमारे प्रोफेशनल वर्क सेटिंग में इमोशनली इंटेलिजेंट लोग चाहिए, जो कि इधर उधर ब्लेम ना करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एंड rather देन वेटिंग कि क्या का व्हाट वाज द कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर रिजल्ट, वो रिजल्ट को उसी समय चेंज कर सके, ना कि जब पूरा हादसा हो गया है या प्रॉब्लम हो गई है या इंसिडेंट हो गया है तब डिसाइड करें कि अच्छा ये क्यों हुआ, बल्कि दे टेक एक्टिव मेजर्स टू नॉट लेट दैट हैपन। सो एंड आई थिंक इमोशनली अगर आप अपने आप को रेगुलेट करेंगे, लोगों के भी इमोशंस को समझेंगे, सो यू विल बी एबल टू बी अ गुड लीडर एंड अ गुड सबऑर्डिनेट एट द सेम टाइम। अगर मैंने अभी इंटरकनेक्शन ऑफ वर्क की बात किया, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सब काम में एक साथ हैं, हम रिलेटेड हैं, हम हमारे काम इंटरकनेक्टेड हैं, और हम एक ही टाइम पे एक से ज्यादा रोल्स भी प्ले कर रहे हैं हमारे प्रोफेशनल सेटिंग में। हम एक ही टाइम पे कुछ लोगों के बॉस होंगे और कुछ लोगों के जूनियर्स होंगे। अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप एक सर्जन हैं, तो आप इंटर्न्स के, सेकेंड ईयर रेसिडेंट्स के, थर्ड ईयर रेसिडेंट्स के बॉस हुए, आप पेशेंट के भी बॉस हुए। लेकिन आप हो सकता है कि हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं, उनके जूनियर हैं, या आप डीन ऑफ मेडिसिन के जूनियर हैं, आप हॉस्पिटल प्रेसिडेंट के जूनियर हैं, सबऑर्डिनेट हैं। तो आपका जो भी रोल हो, चाहे आप एक छोटे से ऑफिस इंटर्न भी हैं, लेकिन आप अगर सबसे आपकी जूनियर मोस्ट पोजीशन है तो आप ऑफिस स्टाफ या ऑफिस क्लर्क के तो ऊपर ही होंगे। तो एक ही पर्टिकुलर रोल में आप बोथ बॉस भी हैं और एक जूनियर भी हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने इमोशंस कैसे रेगुलेट करें जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक प्रोफेशनल सेटिंग में, और हम दूसरों को भी कैसे समझें। जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज वी आर इन अ लीडरशिप पोजिशन और इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी वी आर ओनली सपोज टू गेट द टास्क डन, जो कि एक हमारा कॉमन स्टीरियोटाइप है कि आई एम ओनली हियर टू गेट द टास्क डन, आई एम ओनली हियर टू गेट द डेडलाइंस अचीव्ड। लेकिन अगर आप किसी का इमोशन नहीं समझेंगे, देन मे बी यू आर अ गुड वर्कर बट यू आर नॉट अ गुड senior, you are not a good employee, you are only a good worker, you are not an asset। तो it becomes important कि हम समझें। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं तो एक प्रोफेशनल सेटिंग में जहां आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कैसे दो तराजू के पलरों को बैलेंस करें। एक तराजू के पलरे पे हमारी इंडिविजुअलिटी है, हमारी पर्सनल स्किल्स क्या है, हमारे पर्सनल गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन क्या है। भाई हर काम हमारे लिए भी एक पर्सनल चैलेंज लेके आता है या एक पर्सनल रिवॉर्ड लेके आता है, कि अगर मैंने ये प्रोजेक्ट अच्छे से कर दिया तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम मुझे इस प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाए, या फिर अगर मैंने ये क्लास या ये लेसन अच्छे से पढ़ा लिया तो हो सकता है मुझे फ्यूचर में और बड़ी सीनियर क्लासेस मिलने लगे। तो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि एक पलड़े पे हमारे इंडिविजुअल गोल्स हैं, हमारी इंडिविजुअलिटी है, हमारी यूनिकनेस है, हमारे स्किल्स हैं। तो वहीं दूसरे पलड़े पे है कि हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं, हम अकेले टीम में नहीं है, हम एक पूरे टीम में हैं। इसका मतलब कि हमें दूसरों का भी देखना है कि उनके वर्क से हम कितना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हमारे वर्क से उनका वर्क कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है, ओवरऑल प्रोजेक्ट कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है। इसलिए जब आप अपनी इंडिविजुअलिटी और टीम प्लेयर बैलेंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर समय आई यू कैन नॉट एक्ट आउट योर इमोशंस, भाई मैं तो ऐसा ही हूँ या भाई मैं ऐसी ही हूँ। आप हर समय ये एक्सक्यूज देके काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक टीम प्लेयर भी हैं, और टीम में nobody is here to understand you personally 100%, everyone is here only working towards a common goal। तो जब आप ये खुद को रिमाइंड करेंगे तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपने इम्पल्सेस कैसे मैनेज कर रहे हैं, कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, क्या वो ऑलमोस्ट जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है क्या वो नेसेसरीली या हमेशा राइट रिएक्शन भी है या राइट वे है, वो भी देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जब आप ये सारे रिमाइंडर्स रखेंगे कि नहीं मैं एक प्रोफेशनल सेटिंग में हूँ, ये एक मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा एक दूसरा रोल है, तब इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस आपको लाइफ में ज्यादा लगेगी और वहां पे इम्पोर्टेंस बढ़ भी जाती है। और इससे आप दूसरों के पर्सपेक्टिव भी समझेंगे कि उसने क्या किया, व्हाट डज ही नीड, व्हाट डज शी नीड्स। तो उस हिसाब से हमें अपने के साथ साथ हम जब दूसरों को भी
लेके चलेंगे तो हम एक बेटर इंडिविजुअल भी बन रहे हैं। क्योंकि साइकोलॉजी में हम पर्टिकुलर अगर बात करते हैं तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं करते हैं या एक पर्टिकुलर केस या इंसिडेंट की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम ओवरऑल एक बिग पिक्चर को भी लेके चलते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से या इस पर्टिकुलर केस से मैंने क्या सीखा एंड हाउ डज दिस हेल्प मी बिकम अ बेटर पर्सन. So maybe you have a very tough project and maybe this project needs immediate attention, or this project should be on your priority list. But how you behave with that project will not finish with the project खत्म हो जाएगा, project की deadline है, but आपने कैसे behave किया उस particular time पे अपने juniors के साथ, अपने seniors के साथ और खुद के साथ, अपने maybe family members के साथ, वो permanent रहेगा. It adds on to your definition, it adds on to the person that you have become. एंड वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो कॉन्शियसनेस थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैं क्या इसी तरीके का इंसान हूँ, कि या मैं क्या इसी तरह की पर्सन हूँ कि जब एडवर्सिटी आती है, जब प्रॉब्लम आती है, तो आई लूज माई कंट्रोल, आई लूज माई कूल हेडेडनेस. तो अगर आप ऐसे हैं तो मे बी दिस इज अ टाइम टू रिफ्लेक्ट कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिससे गोल्स भी मीट हों, जिससे खुद के एस्पिरेशंस भी मीट हों, लेकिन वो एक अच्छा इंसान भी रहे इन द प्रोसेस. आई डोंट लूज माई सेल्फ इन दैट प्रोसेस. क्विकली वी विल गो थ्रू कि एक बॉस या एक कोऑर्डिनेटर की इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हो जाती है. इट बिकम्स इंपॉर्टेंट एज अ बॉस कि आप इनकरेजिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो. पहले तो हम समझें कि दूसरे के पर्सपेक्टिव क्या है, दूसरों के इमोशंस क्या है, दूसरों के नीड्स क्या हैं, दूसरों ने क्या व्यू पॉइंट लेके कोई काम किया है. एंड देन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम एनकरेज करें. नेगेटिव बात भी पॉजिटिव तरीके से बोली जा सकती है कि आई एक्सपेक्ट बेटर ऑफ यू, से लोग ज्यादा इंस्पायर होंगे रादर देन सेइंग कि यार मुझे तो पता ही नहीं था तुम इस तरह के इंसान हो, या मुझे तो पता ही नहीं था तुम ऐसा काम, घटिया काम करोगे, या ऐसा बी ग्रेड काम कर दोगे. मतलब बी ग्रेड परफॉर्मेंस थी. इससे बेटर है अगर आप बोले मुझे लगा मैं तुमसे ए ग्रेड परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था, बात करने का हल्का सा लहजा बदला है, लेकिन क्योंकि सेकंड तरीके में इंकरेजमेंट है कि मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं तुम और अच्छा कर सकते हो या और अच्छा कर सकती हो, तो उस एनकरेजमेंट में लोगों के आप यू आर बीइंग, यू कैन हैव बेटर कनेक्शन विद द पर्सन, यू आर बीइंग अ बेटर पर्सन, यू आर बीइंग अ बेटर मोटिवेटर, एंड देयर इज अ हायर चांस ऑफ गेटिंग द जॉब डन. आप एक टीचर हैं और स्टूडेंट से बोलें तुम्हारे तो ऐसे ही मार्क्स आते हैं, मुझे तो पता है, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या होगा, से शायद ज्यादा काम ये हो जाए कि आप बोले मुझे तो लगा था कि आज तुम इस बार तो हमारा यही बच्चा टॉप करेगा. तो हो सकता है कि बच्चे में कुछ मोटिवेशन इंस्टिल हो. सो एज अ लीडर, एज अ कोऑर्डिनेटर, मैं कभी बॉस वर्ड नहीं यूज करना चाहती हूँ, बिकॉज वी आर बॉस समटाइम्स लुक्स लाइक कि हम बहुत ही अल्टीमेट रूलिंग वर्ड है. लेकिन अगर आप एक लीडर बने, ये ना सोचें कि मैं एक बॉस हूं, बल्कि मैं एक लीडर हूं, मैं एक कोऑर्डिनेटर हूं. मैं सिर्फ लोगों को नहीं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, बल्कि मैं उनकी नीड्स, उनके इमोशंस को भी कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, उनके व्यू पॉइंट्स को भी कोऑर्डिनेट कर रहा हूं. तो ये एक हल्का सा एक वर्ड चेंज करने से बहुत पर्सपेक्टिव भी आपका चेंज हो जाएगा कि नो, आई डोंट वांट टू बी बॉस, आई वांट टू बी अ कोऑर्डिनेटर, आई वांट टू बी अ लीडर, आई वांट समवन हु इंस्पायर्स, हु विशेस टू बिल्ड थिंग्स टुगेदर. फिर एक यूनिकनेस इन अदर्स भी अगर आप ढूंढें कि इस बंदे की स्ट्रेंथ क्या है, इस बंदे में क्या यूनिक है, और उसको वो काम दें, तो बेटर चांस हो सकता है कि परफॉर्मेंस बेटर हो, टाइम फ्रेम कम लगे उस अच्छी परफॉर्मेंस को देने में, थिंग्स आर डन इजियर. ऑफ कोर्स इफ यू आर बीइंग डेमोक्रेटिक एंड मोर फ्लेक्सिबल, तो फिर ये हो जाएगा कि अगर आपने टू वे कम्युनिकेशन रखा है, थ्री वे मल्टी वे कम्युनिकेशन रखा हुआ है कि लोग आपके पास आके इनपुट्स दे सकते हैं, तो आपको टीम कोमैडरी अच्छी बिल्ड होगी, आप लोगों के भी इमोशन समझेंगे, लोग भी आपके लिए वर्क करना चाहेंगे. वंस दे अंडरस्टैंड कि नो, समवन आल्सो केयर्स अबाउट मी, दे विल आल्सो स्टार्ट केयरिंग अबाउट यू, they will also start caring about the goal and the team more. Be a little flexible. मैंने जो कह दिया, don't let it be the last line कि मैंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है. Acknowledge others efforts. ये encouraging या में ही आता है, जब आप लोगों को उनके छोटे efforts भी या वो हल्का सा भी जो काम कर रहे हैं वो acknowledge करेंगे, तो they will be feeling noticed. जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बॉस कभी हमें acknowledge कर दे कि गुड जॉब शिवी, गुड जॉब शाश्वत, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया. तो वैसे ही अगर हम अपने स्टूडेंट्स, अपने जूनियर्स का काम हल्का सा भी एक्नॉलेज करेंगे, तो वो और मोटिवेटेड होंगे और अच्छा काम करने के लिए, और ज्यादा काम करने के लिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डोंट पुट योर एम्बिशंस ऑन अदर्स.
आपके लिए वो आपका गोल होगा, आपके लिए ये पर्टिकुलर एम्बिशन, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ये पर्टिकुलर रिवॉर्ड, ये पर्टिकुलर प्रमोशन इम्पॉर्टेंट होगा। लेकिन क्या वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है। तो जब आप ये फॉरगेट कर जाते हैं कि किसको चाहिए ये, और आप सब पे इन्फोर्स करेंगे, इस तब ना आप लोगों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी खोने लगेंगे। अगर घर में मुझे आइसक्रीम चाहिए और मैं सबको फोर्स करूं कि नहीं नहीं चॉकलेट ही खाते हैं ना, चॉकलेट ही खाते हैं क्योंकि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खाना है, there's a चांस कि घर में चॉकलेट आइसक्रीम आ भी जाएगी, बट नॉट एवरीबडी विल एंजॉय इट, नॉट एवरीबडी विल ईट इट, एंड द आइसक्रीम माइट गो बैड। Instead, if I say कि no, I want to eat ice cream, whatever you guys are comfortable, जिसको केक खाना है या किसी को दूसरा फ्लेवर आइसक्रीम खाना है, तो तुम लोग अपना अपना खा लो। तो चांसेस आर कि डाइवर्सिटी में थोड़ा सा भी चलो बोल दिया कि नहीं चॉकलेट या वैनिला में ही चूज कर लो, तो थोड़ा सा अगर हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, थोड़ा सा ऑप्शंस दिया, तो देयर इज अ चांस तब भी ग्रुप थोड़ा ज्यादा यूनाइटेड रहे। हमने जैसे डिस्कस किया था कि एक एक पर्टिकुलर रोल में आप जूनियर भी हैं, आप सीनियर भी हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस दैट यू माइट नीड एज एन एम्प्लॉय, एज अ प्रोफेशनल, इज दैट यू बी एक्सेप्टिंग। इफ you remind yourself that I am here to work, this is nothing personal, whatever project is being given to me, whatever job is being given to me, is not is in an insulting way, it's not personal, it is my work, I have to do it, it is sort of my duty. Once you are accepting, you will be more open to opportunities, you will be more open to feedback, and you will be more open to a lot of things that you can learn, new experiences, और वो सब आप ही को improve करेंगे as a professional, as a person. You can also be accepting of people's emotions. अगर फलाना बंदा आपके बिहेवियर से या आपकी वजह से या किसी और वजह से भी सैड है, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट ऑलवेज अ पॉइंट कि उसको मैं हैप्पी करूंगा, इफ यू कैन ऑलवेज at least for some time accept कि no, he is sad, let him be, that is also giving the other person the space to feel their emotions. That is also important. अंडरस्टैंड योर ओन यूनिकनेस एंड स्ट्रेंथ, मेरे प्लस पॉइंट्स क्या है, मेरे प्रोज क्या है, मेरे एडवांटेजेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप हमेशा वो एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को अंडरस्टैंड करेंगे, वो सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करेंगे, तो आपके लिए इजियर हो जाएगा कि मैं कैसे अ, इस काम को अचीव कर सकता हूँ, मैं कैसे दूसरों को समझ सकता हूँ। जिसकी यूनिकनेस है कि आई एम अ पीपल्स पर्सन, तो अगर आपके समझ में आ गया कि मैं बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ, तो अगर मान लीजिए आज हमारे वेबिनार से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि नहीं यार, मैं इतने लोगों से बात करता हूँ, मेरी जॉब ही मैनेजरियल लेवल पे है या एचआर की जॉब है, इतने लोगों से मैं टू एंड फ्रो करता हूँ, तो हो सकता है मुझे ज्यादा जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस जानना, तो मैं इसको और अच्छे से इम्प्रूव करूंगा। आज मैं 100 लोगों को जानता हूँ, कल मैं 150 लोगों को जान सकता हूँ बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को समझेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे दूसरों को, और अपने को भी आप बेहतर समझ पाएंगे। This is a very important point, the third point, which is that you need to involve yourself in less competition. जब आप लोगों को अपने सिर्फ competitor नहीं समझेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि we are all here to work and we are all given different roles and I'm only here to work my role, it becomes easier कि आप पे burden भी कम आएगा, and most importantly जो extra competition में आपका energy waste हो रही है, आपके emotions, आपकी positive mindset waste हो रहा है, वो आपका कम होगा, वेस्टेज कम होगा, आपके पास ज्यादा टाइम बचेगा, यू विल फील लाइटर, वर्क नॉट फील स्टार्ट फीलिंग सो ड्रेडफुल टू यू। वर्क ऑन योर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड टुवर्ड्स योर गेन, मैं इस प्रोजेक्ट से कैसे सीख सकता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट से क्या गेन कर सकती हूँ, इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं ये मेरा एम्बिशन है, मैं इससे क्या क्या सीख सकती हूँ, हाउ कैन दिस हेल्प मी, इज मोर इम्पोर्टेंट देन उसको क्या हो रहा है, वो क्या सीख रहा है, उसका क्या गेन है। वो दूसरों के प्रॉब्लम्स का भी, मतलब दूसरों का भी लगेज कभी कैरी करेंगे तो वो ज्यादा भारी होगा, अपना लगेज कैरी करेंगे। एंड अगेन ऑन दैट पॉइंट इज बी सैटिस्फाइड विद योर वर्क। once you go satisfied, once you say that I have done a good job, खुद को ही बोलेंगे I have done a good job today, then what happens कि कल आप मोटिवेटेड होके वापस आएंगे, आप इनकरेज्ड होके वापस आएंगे। हम लोग ऑफिस में लॉग आउट करने से पहले क्लियर टैब करते, सारे टैब्स क्लियर कर दिए, क्लोज ऑल टैब्स कर दिए, एक बार रिफ्रेश कर दिया, फिर शट डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे फिर कंप्यूटर अच्छा चलेगा, कल बिना बफरिंग
So similarly, if every day or at least after end of every project, after the end of every important event, you remind yourself ki nahi, I have done a good job, this is what I have gained from this project, then what happens is that you are satisfied from your work, and there's a higher chance that you will come back more motivated, more encouraged. Quickly, we'll go with how to manage your emotional intelligence and your work together. अभी तक हम मेरा ये कभी भी वो मोटो नहीं रहेगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब यू बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ पीपल। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आई बी मोर एक्सेप्टिव, मैं अपना एम्बिशन कम कर दूं, अपना ड्राइव कम कर दूं, या मैं एक बैड कोऑर्डिनेटर बन जाऊं कि बिकॉज आई कैन नॉट आई कैन नॉट बी अ गुड कोऑर्डिनेटर, आई कैन नॉट बी अ गुड लीडर एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड। या तो मैं सबकी इमोशन समझ लूं या तो मैं लीडर कर लूं। तो ऐसा नहीं है कि ये पैरेलल ऑपोजिट है कि या तो आप सबके इमोशन समझ सकते हैं या तो आप अच्छे लीडर बन सकते हैं। ये दो एंड नहीं है, दो दरिया के किनारे नहीं है, ये टुगेदर भी काम कर सकते हैं। तो अब हम क्विकली कुछ टिप्स समझेंगे, विल लर्न सम थिंग्स इन द माइंड। अगर आप इस इमेज की तरफ देख सकते हैं, जो पिज्जा है उसके स्लाइसेस अलग अलग हैं। ये अगर पूरा फुल पिज्जा अगर आपकी लाइफ है, तो योर वर्क इज ओनली अ स्लाइस ऑफ दैट पिज्जा। अगर आप खुद को ये याद दिलाएंगे कि माई वर्क इज नॉट एवरीथिंग, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ बट इट इज नॉट माई होल लाइफ, वो बस एक स्लाइस ऑफ द पिज्जा है। जब हम ये खुद को याद दिलाते हैं, जो हम एक ओवरवेल्म्ड होते हैं, इज द स्क्रीन नॉट विजिबल गाइज? No, Shivi. Only your voice is heard. There's no presentation. But in my laptop I've been it's the screen is visible for a long time. That's what I thought ki oh good god, this is so embarrassing. I'm so sorry guys. That's I'll okay. just quickly share again. No, I but think I this has happened prepared for you guys and after we started hearing you better. We stopped yeah. the screen. Okay. Oh good god, is it visible now? Because I shared again. Is it visible now? Oh, I think it's there going to it is. load. It's saying There. Shivi Bhatt is presenting, but not yet. Oh good god. Oh god, I'm so embarrassed with my network. Okay, maybe I'll share the screenshots in the group so that Now you we can guys, see the pizza. you know. Ah, okay, perfect. Thank you. Okay. Yes, so the pizza, the slices are, the different parts of your life. So you can give 2 slices of your pizza to your work life, maybe 3 if you are, a workaholic. But if you keep reminding yourself that this is not exact, not my entire life, a lot of emotions that you are carrying, because, in your head, कभी कभी हमारे दिमाग में, हमारे सर में वो एम्बुलेंस का अलार्म बजता रहता है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वंस दैट गोज, गुड गॉड शुमा, ये देखो यार इसको, ये तो बहुत ज्यादा ये ना उसकी वजह से हो रहा है। I'll just stop sharing. I feel like my network, and we try to put in everything, every emotion that we feel, every feeling that we feel into that particular aspect. क्योंकि हमें लगता है कि यही हमारा सब कुछ है. But if you distance yourself a little and you realize that this is just a slice of the pizza, this is just a slice, a lot of emotions that you had been carrying, a lot of stress, a lot of anxiety that you had been carrying, that was unnecessary and not related to this particular aspect of your life, stops coming along with it. I am only here to work. So maybe me trying to prove a point to my old colleagues, to prove a point to my classmates and to my parents, all of this excess energy, excess anxiety can go back home. I am only here to work. Once you realize that, then what happens is you're better able to manage your emotions, because there are now less emotions. The less emotions on your plate, less pizza. एक छोटी पिज्जा की स्लाइस है तो कम ही आएगा ना, उसमें पूरी कैलोरीज नहीं आ रही पिज्जा की. Second, you need to be for an emotionally intelligent person. They don't like to blame others, and they don't like to leave things ambiguous. Hi, Samarin, could you please mute yourself so that I feel like it jo bhi thoda sa. Okay, perfect. Thank you.
तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, दे डोंट लाइक टू लीव थिंग्स एम्बिग्यूअस, थोड़ा सा ब्लर्ड, थोड़ा सा रीड इन बिटवीन द लाइंस, वैसे वाली चीजें नहीं रखते हैं वो. दे लाइक टू बी वेरी क्लियर इन देयर कम्युनिकेशन. तो दे लाइक टू हैव क्लियर कम्युनिकेशन, दे हैव लाइक टू हैव कंसाइज कम्युनिकेशन, एंड दे लाइक टू हैव कंप्लीट, जो होता है पूरा बोलते हैं. जैसे कि हम अगर मिलिट्री वाले लोगों को देखते हैं तो वो ओवर एंड आउट के साथ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बोलते हैं. So sometimes if you want to be an emotionally intelligent person in your professional setting, have clear communication, so that a clear communication can save you from excess stress and anxiety कि अगर उसने मेरी बात नहीं समझा तो, what if he doesn't understand the work, what if the deadline is not clear, or what I expect from this project is not clear. जब आप clear concise communication करोगे, आप अपनी प्रॉब्लम एक तरीके से दूसरे को दे दियो. नाउ दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम एनीमोर, मैंने तुमको बता दिया है. तो वो जब आपकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नॉट माई चिकन नॉट माई एग्स, जब आपकी वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो आप धीमे धीमे इस हैबिट में आ जाओगे कि जो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, या जो मैंने रिले कर दिया है, एंड दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, नॉट माई कंसर्न फॉर अनदर 5-6 days, तो उसका टेंशन भी आपको नहीं होगा. तो आपका इमोशन बेटर होगा. Emotionally intelligent people, they don't like to blame others, they don't like to feel leave people confused, and in सारी चीजों में good communication helps. Thirdly, एक बहुत ही अच्छी चीज होगी if we mentally step into other people's shoes also. So once you understand कि why is the other person thinking this way, or if they are my junior, they are my subordinate, हो सकता है उनका experience इतना कम हो, या अगर मेरे बॉस ने डांटा है तो मे बी उनको ज्यादा प्रेशर होगा. जब हम we are a little more understanding of how we work as a team, and we are better able to express it, then what happens, it becomes easier for us to communicate, it becomes easier for us to understand others also, and it becomes easier for us to for people to understand us कि अच्छा ये क्या बोल रही है. और जो हमारे एक्सेस बैगेज हम लेके चल रहे हैं ना, व्हाट इफ का, या जो हम हर चीज का खुद अजम्पशन लेके चलते हैं कि जरूर उसने ये कहा होगा या जरूर उसने ये कहा होगा, वो हम अनलोड कर देते हैं by one simple line that we should remind ourselves कि we don't know the whole story. Once you say this, maybe उसके कुछ circumstance होंगे, maybe उसका कुछ अपना particular reason होगा. These simple sentences help us a great deal in being more emotionally aware of others, in being more emotionally intelligent, and most importantly for being less stressful in our professional setting. Fourth is stay away from comparison. Work may, whenever no matter what you do, if a lot of times if you're comparing yourself with others, it is like comparing an apple and an orange. There is no standard ground for comparison. We are all different individuals. We all come from different upbringings, and we all have our own stories. We are all different beautiful plants that have been planted in different ways. सो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम, क्योंकि वी नेवर स्टार्ट फ्रॉम, हमारी सेम स्टार्टिंग लाइन नहीं रही है, हमारी फिनिशिंग लाइन सेम नहीं है, हमारी सेम डेस्टिनेशन भी नहीं है, हमारा काम करने का तरीका भी नहीं है. सो रिमाइंड योर सेल्फ कि कंपेरिजन से मैं खुद को एक डिक्टेटरशिप वर्ल्ड में डालने की कोशिश कर रही हूँ, मैं खुद को एक फैक्ट्री मेड ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक अपने आप को ही मास प्रोड्यूस्ड आइटम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हेन वी रिमाइंड आवरसेल्फ ऑफ दिस, it becomes easier. The emotions of stress, the emotion of anxiety, the guilt, the self doubt, all these emotions go away. And when we are more confident on ourselves, for ourselves, about ourselves, we also make others around ourselves also more confident. And one more important thing जो मुझे लगता है इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों को इन प्रोफेशनल सेटिंग शुड वर्क इज, अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे आजकल की डेवलपिंग इंडस्ट्रीज में फीडबैक चल रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि वी टेक फीडबैक्स वेरी सीरियसली. हमें लगता है कि फीडबैक इज द लास्ट ऑर्डियल, जज का स्टेटमेंट है, अब तो जो बोल दिया वो कभी चेंज नहीं हो सकता है. And sometimes we get very disappointed, very disheartened, very discouraged from these feedback कि सर को ऐसा कैसे लग गया, या बॉस को ऐसा कैसे लग गया, मेरा तो काम रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है. एंड वी यूज देम एज जनरलाइज कि अब तो मेरा काम कभी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, अब तो सर की मेरी ऐसे ही इमेज बन गई.
नो मैटर व्हाट द बॉस इज थिंकिंग, अगर बॉस से पहले हमने ये लास्ट पत्थर की लकीर बना दिया इस फीडबैक को. So if emotionally intelligent people, we remind ourselves that the feedback is only temporary, this is only for the past 6 months या इस project का feedback है, and I can use this to change myself, I can use this to know more about myself, I can use this to work on myself, I can use this as my strength and weakness identification, report card. Then it becomes easier to break yourself free. आप feedback में खुद को label मत करिए. Feedback is like a cage that we put around ourselves. आप खुद को जब break free करेंगे कि ठीक है मैं इस feedback से learn करूंगा, and it is just a piece of paper, 30% 40% a piece of paper, और इससे मैं खुद को समझूंगा कि मैं और कहाँ conscious changes ला सकता हूँ या ला सकती हूँ. It becomes easier for us to manage our emotions and to understand others also. And again, if we work on self awareness and we work on our anger and ego, जो कि easily कभी कभी creep in हो जाता है professional setting में, then we can all work for a better emotionally intelligent behavior, emotionally intelligent professional setting. So that was all from my side. And I'll send the PPT screenshots to all of you so that you don't feel like you've missed out on anything. And the last PPT, the slide that I had made was bursting a myth. So while I have all of your attention, I would just want to say a lot of people think therapy is prolonged, it's for long term, बहुत लंबी चलती है, कई कई सालों तक चलती है. It is only for people who have a mental disorder or an issue, बड़े पागल लोग ही जाते हैं, या people who are suffering from a problem or a concern, serious concern है, अरे वो तो डिप्रेशन में है, उसको जाते हैं, या फिर उसको तो कोई प्रॉब्लम हो गई है, सदमा लग गया है, वही जाता है. ऐसा नहीं है. Therapy can be as short as 3 sessions or 5 sessions. मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो आई नो कि मैंने 4 सेशन में के भी सिर्फ थेरेपी लिया है, और 4 सेशन लिया है मैंने या तो हफ्ते में 2 बार और या तो महीने में 1 बार, और 1 महीने में भी लोग ठीक हो गए हैं, इन द सेंस कि लोग आर फीलिंग, पीपल आर मोर मोटिवेटेड, दे फीलिंग बेटर अबाउट देमसेल्व्स एंड दे हैव स्टार्टेड मूविंग ऑन विद देयर लाइफ. एंड इट्स थेरेपी इज लाइक अ स्विमिंग. आप स्विमिंग कभी कभी बहुत भी सीख सकते हो, कभी कभी कुछ लोग इजी लर्नर्स होते हैं तो वो जल्दी भी सीख लेते हैं. And it is always a form of guidance whenever you feel lost, whenever you feel a little overwhelmed, whenever you feel like कि I need a space जहाँ पे लोग मैं अपनी बातें convey कर सकूं और लोग मेरी बातें समझें. Therapy is that space for you also, wherein you get a kind, a compassionate and a listening ear. So I would like to all tell this to all my participants कि let's be more socially aware, let's be more not only emotionally intelligent but also socially aware. Let's burst this myth together. And if you ever need us, if you ever need our consultation, our services, our expertise, I need to have a chat, I just need to feel my emotions, reorganize my emotions, we are always available. You can download the Mindwit app, or you can contact us. I am always available as a collaborator on the app, and we can always sit down and figure things out. कभी कभी दोस्तों के साथ जैसे मिल के वो rant out कर लेते हैं तो अच्छा लगता है, बट दोस्त के साथ थोड़ा unprofessional rant out होता है. With a professional, if you sit down and rant out for 2 sessions, 1 session with a professional, हम आपको लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स भी दे सकते हैं और दे देते हैं, कुछ ऐसे कंक्लूजन भी दे देते हैं कि that brings a different perspective to you for the same problem, and the change perspective can change the entire problem, can change the entire solution for you. So do give therapy a try anytime you want. Don't shy away. Be more socially aware and be more emotionally intelligent. I hope the session today was a little problematic. I apologize again for the network issue, and I will be sharing the PPT with the Firoz sir, so you all can get your hands on the helpful wala slide. Is there any feedback you would like to give me that I would like use to again to be more emotionally intelligent, to work more on myself, identify my strengths? The floor is yours for the next 30 seconds. Thank you, Asma. I hope you guys join us for our future webinars as well. We are trying to make a more,
socially aware, a more expressive, a more understanding, a more compassionate Indian society, जहाँ पे हम we are more aware of ourselves, we are more mindful of what we want, what our needs are. And we would all need, changing lives one life at a time, but we would all need your cooperation and understanding. Thank you, KK. I hope the you could learn a lot